Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 16th chapter of class 6, which is about waste management. Okay, let's start the chapter. See, first of all, we are having the introduction. Let's discuss it. Waste is defined as unwanted and unusable material and is regarded as a substance that is of no use. Waste that we see in our surrounding is also known as garbage. Garbage is mainly considered as a solid waste that includes wastes from our house, that is domestic waste, wastes from school, offices, etc., that is municipal waste, and wastes from industries and factories, that is industrial wastes. So student, what is waste? Waste ऐसा कोई भी unwanted and unusable material है जिसको एक ऐसा सब्सटेंस रिगार्ड किया जाता है दैट इज ऑफ नो यूज, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो अब आगे यूज कर नहीं रहा, उसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे. वेस्ट जो है, जो हमारे सराउंडिंग में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गार्बेज कहते हैं. ओके, गार्बेज के अंदर मेनली वो सारा सॉलिड वेस्ट आता है जिसके अंदर वो सॉलिड वेस्ट जो हमारे घर से प्रोड्यूस होता है, लाइक दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वेस्ट, या स्कूल ऑफिस से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट that is known as municipal waste, and जो industries and factories से निकलने वाला waste that is known as industrial waste. So basically garbage के अंदर वो सारे के सारे solid wastes include होते हैं जो आपके domestic, municipal या industrial wastes होते हैं. Okay? Now, so first of all, the topic is sources of waste. The sources of waste can be broadly classified into 4 types. So waste के जो sources है उनको 4 types में classify किया जाता है: industrial, commercial, domestic and agriculture. And first of all, we are going to talk about industrial waste. So industrial waste कौन से हैं? These are the wastes created in factories and industries. Okay, most industries dump their wastes in rivers and seas that causes a lot of pollution. So वो सारे वेस्ट जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से क्रिएट होते हैं उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाता है. एंड मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने वेस्ट को रिवर एंड सीज में डंप करती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है. एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ग्लास, वेस्ट वाटर एक्सेट्रा. Then next we come to commercial waste. Commercial waste वो है जो स्कूल, कॉलेजेस, शॉप एंड ऑफिसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा. ओके. Then next we come to domestic waste. Domestic waste is what? The different household wastes that are collected during household activities like cooking, cleaning, etc. are known as domestic wastes. वो different household यानी कि different घर से produce होने वाला waste जो हम household activities के दौरान collect कर लेते हैं, like cooking, cleaning, etc. उसको domestic waste कहा जाता है. Example, leaves, vegetable peas, etc. Okay? चलो. Then agriculture wastes. Agriculture wastes के अंदर various wastes produced in the agriculture field. जो agriculture field में various wastes produce होते हैं उनको agriculture wastes कहा जाता है. For example, cattle waste, wheat, husk, etc. Okay? चलो. Now next topic which we come to is types of waste. So कितने types के waste है? Commonly waste को हम 2 types में classify करते हैं. Number 1 biodegradable and other is non-biodegradable waste. ओके, अब इन 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. नंबर 1 इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दीज आर द वेस्टेस दैट कम फ्रॉम आवर किचन एंड इट इंक्लूड्स फूड रिमेन्स, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा. एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट वेस्ट. सो वो सारा वेस्ट जो हमारे किचन के अंदर से प्रोड्यूस किया जाता है एंड उसके अंदर फूड रिमेन, गार्डन वेस्ट सब कुछ होता है, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर इसको मॉइस्ट वेस्ट भी कहा जाता है. अब इस वेस्ट को क्या हम कंपोस्ट करके मेन्योर बना सकते हैं? मीन्स वॉट कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है खुद को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिकम्पोज कर लेता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कि किस टाइप का मटेरियल वेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, वो खुद को डिकम्पोज करके मेन्योर बना लेता है. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ये वो वेस्ट है जिसके अंदर ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्रोकन ग्लासेस, पीसेस, प्लास्टिक एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड किए जाते हैं. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है. ये ड्राई वेस्ट को क्या किया जा सकता है? इट कैन बी रिसाइकल एंड कैन बी रीयूज. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज बाय देमसेल्फ एंड हेंस आर मेजर पॉल्यूटेंट्स. सो ड्राई वेस्ट जो है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता है खुद से, एंड इसीलिए ये मेजर पॉल्यूटेंट्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. अब वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है? So waste management is the process of treating solid waste and offers variety of solutions for recycling items that don't belong to trash. It is about how garbage can be used as a valuable resource. Waste management is something that each and every household and business owner in the world needs. Waste management disposes of the products and substances that you have used in a safe and efficient manner. So waste management क्या है? एक ऐसा process है जहाँ पे हम solid waste को treat करते हैं एंड वैरायटी ऑफ सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि हम उन आइटम्स को कैसे रिसाइकल कर सकें जो अब क्या ट्रैश को बिलोंग करते हैं. ठीक है,
बेसिकली ये एक तरीका कि कैसे हम गार्बेज को एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हर एक हाउस होल्ड या बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हर एक हाउस होल्ड को, हर एक बिजनेसमैन को वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? वो सभी प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंसेस को प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाता है, एंड ऐसे डिस्पोज किया जाता है कि वो एक सेफ एंड एफिशिएंट मैनर होता है, डोंट हार्म आवर एनवायरनमेंट बेसिकली। सो नाउ फॉलो 3 R's। सबसे पहले फॉलो 3 R's, यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स प्रपोज किए गए हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, चलो। सो first of all, reduce means what? Procure minimum required quantity of material which is fully used. This reduces waste. Do not make purchases unnecessarily. So हमें क्या मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कि किसी भी मटेरियल की सिर्फ उतनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी चाहिए जिसको हम अच्छे से यूज कर सके। इससे वेस्ट रिड्यूस होता है, हमें अननेसेसरली किसी भी चीज को परचेज नहीं करना चाहिए। Then next we have reuse. Reuse means what? Object that can be reused again and again should not be discarded as waste. Reuse them. वो ऑब्जेक्ट जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो उनको आपको एज अ वेस्ट डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उनको रीयूज करना चाहिए। एंड देन थर्ड वी हैव रिसाइकल। रिसाइकल द वेस्ट दैट कैन बी रीयूज्ड आफ्टर मेल्टिंग और मोल्डिंग देम, एंड ऐसा वेस्ट जिसको मेल्ट या मोल्ड करके दोबारा रीयूज किया जा सकता है, देन दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग। Now next we come to segregation of waste. Segregation of waste is essential as the amount of waste being generated today cause immense problem. There are certain items that are not biodegradable but can be reused or recycled. In fact, it is believed that a larger portion of the waste can be recycled, a part can be converted to compost, and only a smaller portion of it is real waste that has no use and has to be discarded. So what they are saying कि segregation of waste, waste का segregation करना is very essential because जितना amount of waste आज के टाइम पे हम generate करते हैं उससे एक बहुत immense problem होती है। सारे waste को क्या एक separate sectors में या section में divide करना is necessary. So कुछ ऐसे items होते हैं जो biodegradable नहीं होते हैं लेकिन उनको reuse या recycle किया जा सकता है। In fact ये believe किया जाता है कि एक बहुत बड़ा portion है हमारे waste का जिसको हम recycle कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा एक ऐसा पार्ट होता है वेस्ट का जिसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक बहुत छोटा सा पोर्शन गार्बेज का वो होता है जो रियल होता है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं होता है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसीलिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज रिक्वायर्ड। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? एज वी हैव डिस्कस्ड कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज एंड कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। What are those processes? Number 1, composting. See, this is a process in which waste can be decomposed and converted into organic matter by burying them in the compost pits. So basically एक ऐसा process है जहाँ पे waste को decompose and convert किया जाता है एक organic matter में, उसको क्या करके compost pit के अंदर buried करके, ठीक है। अब वेस्टेज को फिर बैक्टीरिया एंड फंगाई के एक्शन के थ्रू कंपोज किया जाता है, एंड इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक वेस्ट को एक पिट के अंदर यानी कि ग्राउंड में गड्ढा खोदा जाता है, सारा जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाएगा एंड उसको नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पीस, स्पॉइल्ड फूड, टी लीव, ड्राई लीव, डेड प्लांट एंड एग शेल, ये सभी जनरली यूज किए जाते हैं कंपोस्टिंग के लिए, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट, जिसको एज अ मेन्योर हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। एंड कंपोस्ट के फॉर्मेशन में अराउंड फ्यू वीक्स टू मंथ तक का टाइम पीरियड लग जाता है। अनदर वे टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग, और एक और मेथड है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। सो नाउ द टॉपिक इज वर्मी कंपोस्टिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक मैटर को अगेन फर्टाइल मेन्योर में ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है, डिकम्पोज करता है, लेकिन यहाँ पे रेड वर्म्स के थ्रू इन्हें किया जाता है, एंड इसीलिए जिसके बाद हमें कंपोस्ट मिलता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। सी दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू फर्टाइल मेन्योर विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म, एंड दिस इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। सो जनरली जो आपके रेड वर्म्स एंड अर्थवर्म्स होते हैं वो इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, एंड जो एक्शन है वर्म्स का वो एक न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम सॉइल में ऐड करके उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। Okay, the next topic which we have is incineration. Incineration features combustion of wastes to transform them into basic components with generated heat in specialized furnaces. So incineration में क्या होता है, इसमें हमें wastes को combust करना होता है so that हम उन्हें base components में transform कर सकें, है ना, and उसके साथ कुछ specialized furnaces में heat भी generate होती है। So ये high temperature treatment क्या करता है, waste material को ash, वेरियस गैस एंड हीट में कन्वर्ट करता है, एंड ये प्रोसेस यूजफुल होता है मेनली मेडिकल वेस्ट एंड जो बाकी हेजार्डियस वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज
उनका जो डिस्पोजल है दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जो हीट इंसिनरेटर से प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो बेसिकली इंसिनरेशन डिफरेंट है फ्रॉम बर्निंग वेस्ट इन द ओपन। इसमें हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं, जबकि इंसिनरेशन में वेस्ट को एक कंट्रोल्ड मैनर में बर्न किया जाता है। ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज recycling of waste. See, recycling of waste product is very important as this process helps in processing waste or used products into useful or new products. So waste products का recycling जो है एक बहुत important है because इस process के अंदर waste जितने भी used products हैं उनको क्या किया जाता है, process किया जाता है useful या new products बनाने के लिए। रिसाइकलिंग जो है एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड इसमें एनर्जी जो है वो भी लेस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ आइटम, बहुत सारे ऐसे आइटम्स है स्टूडेंट्स जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। रिसाइकलिंग हमें हेल्प करता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें एंड एनर्जी को भी कंजर्व करें। रिसाइकलिंग हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है बिकॉज ये एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। कैसे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करी जा सकती है? सो प्लास्टिक हैव बिकम एन इनसेपरेबल सब्सटेंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में एक इनसेपरेबल सब्सटेंस बन चुका है प्लास्टिक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिथीन। अगर आप पॉलिथीन से स्टार्ट करो, कैरी बैग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, आप न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स यू विल फाइंड अराउंड योरसेल्फ व्हिच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, वी कैन नॉट स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक के यूज को स्टॉप नहीं कर सकते, हाउएवर हम उसे रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, राइट। सो देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस देम। नंबर 1, प्लास्टिक बॉटल कंटेनिंग जूसेस एंड ड्रिंक्स शुड बी वॉश्ड एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाउसहोल्ड आइटम्स। जो प्लास्टिक बॉटल्स है जिनके अंदर जूसेस एंड ड्रिंक्स आते हैं उनको आपको प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए एंड आप उन्हें फिर हाउसहोल्ड आइटम स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन ओल्ड बकेट्स को एज अ पॉट यूज किया जा सकता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। देन ओल्ड प्लास्टिक टॉयज जो है उनको आप जो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं। Then broken household plastic items should be given away to scrap dealers so that they can be melted in factories and recycled into useful products. जो broken household plastic item, घर में जो प्लास्टिक आइटम से टूट जाते हैं, आप उन्हें स्क्रैप डीलर को दे सकते हैं। वहाँ जाके फैक्ट्रीज में ले जाकर उनको मेल्ट करेंगे एंड उनको फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स में रिसाइकल किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज से नो टू प्लास्टिक बैग। कि हमें प्लास्टिक बैग को नो कहना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए। हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए फॉर कैरिंग डे टू डे परचेजेस। ओके, चलो, से नो टू प्लास्टिक इवन इफ अ बैग इज ऑफर्ड बाय द सेल्समैन, राइट। नाउ मेक यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करना चाहिए। प्रेफर टू मेक यूज ऑफ पेपर, जूट और क्लोथ बैग। ठीक है, आप क्या प्रेफर करो कि आप पेपर, जूट या क्लोथ बैग को यूज करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर, ये ज्यादा बेटर होगा कि आप एक जूट या क्लोथ बैग को कैरी करोगे अपने घर से while going to the market for purchasing. Okay? Now the next topic is recycling of paper. अब पेपर की recycling डिस्कस करेंगे। So recycling of paper is the process by which waste paper is turned into new paper products. So एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वेस्ट पेपर को न्यू पेपर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे recycling of paper कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं बिसाइड सेविंग ट्री, यानी कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो ट्रीज को सेव करने के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसमें लेस एनर्जी एंड वाटर इंटेंसिव होता है। देन पेपर मेड फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, वेस्ट पेपर को सेव कर सकते हो फ्रॉम ऑक्यूपाइंग लैंडफिल। ठीक है, लैंडफिल क्या है? लैंडफिल एक लार्ज ओपन एंड लो लाइंग एरिया है जिसको सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इस लो लाइंग एरिया को, जिसको हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यूज करते हैं, इस लो लाइंग एरिया में क्या किया जाएगा? सॉलिड वेस्ट को स्प्रेड किया जाता है, सॉइल से कवर्ड किया जाता है एंड इसको सेवरल टाइम्स किया जाता है जब तक लैंडफिल एरिया कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। एंड उसके बाद इस लार्ज एरिया को एक पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ पार्क जो हमारा दिल्ली में है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लैंडफिल साइट ओनली। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.